10.2. Life is impossible without energy. The demand for energy is ever increasing. Where do we get energy from? The sun. Sun is biggest natural source of energy to us. Many of our energy sources are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atoms, the interior of the earth, and the tides. Can you think of other source of energy? The word energy is very often used in our daily life, but in science we give it a definite and precise meaning. Let us consider the following examples. When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height gets the capability to do work. You must have seen that when a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. We have also observed children building a toy such as a toy car can, and when the toy is placed on the floor, it starts moving. When a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shape. As long as we press it gently, it can come back to its original shape. When the force is withdrawn, however, if we press the balloon hard, it can never explode, producing a blasting sound. In all these examples, the object acquires through different means the capability of doing work. An object having a capability to do work is said to possesses energy. The object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gains energy. How does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert a force on another object. When this happens, energy is transferred from the former to the latter. The second object may move as it receives energy and therefore do some work. Thus, the first object had capacity to do work. They implies that any object that possesses energy can do work. The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule. 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. Sometimes a large unit of energy called kilojoule is used. 1 kg equals to 1000 joule. ऊर्जा ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है. ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है. हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं. हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं. क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है. आइए आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें. जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरता है. इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है. अब आपने अवश्य ही देखा होगा कि ये ऊंचाई
तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील की लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौने जैसे खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा है, और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो यह गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भर कर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ सकता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि करते हुए भी फट सकता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसा कार्य करती है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु में दूसरी वस्तु से स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का अर्थात जूल। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल के बराबर होता है। Form of energy. Luckily, the world we live in provide energy in many different forms. The various forms include mechanical energy, potential energy, plus kinetic energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, and light energy. Think it over. How do you know that some entity is a form of energy? Discuss with your friends and teachers. James Prescott Joule was an outstanding British physicist. He is best known for his research in electricity and thermodynamics, amongst other things. He formulated a law for the heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of mechanical equivalent of heat. The unit of energy and work, called joule, is named after him. ऊर्जा के रूप। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों से विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित हैं। आप कैसे ज्ञात इस सोचिए आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है। अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मा गति के
अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत विद्युत के ऊष्म प्रभाव के बारे में नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया था। ऊष्मा के यांत्रिक मूल्यांक के मान की खोज की। ऊर्जा तथा कार्य मात्रक का नाम जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, जिससे हम उसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटी पढ़ेंगे। और ये एक्टिविटी है 10.6, जो कि कह रहा है, पहला पॉइंट है, टेक अ हैवी बॉल, ड्रॉप इन ऑन अ थिक बेड ऑफ sand. A wet bed of sand would be better. Drop the ball on the sand bed from height of about 25 centimeter. The ball creates a depression. गतिज ऊर्जा। एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत चारे पर गिराइए। गीले रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत में एक गड्ढा बना देती है। Repeat this activity from heights of 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर and 1.5 मीटर। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराकर दोहराइए। Ensure that all depressions are डिस्टिंक्ट विजिबल। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दें। मार्क द डिप्रेशन टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल्स वाज ड्रॉप्ड। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी ही गर्तों पर निशान लगाइए। कंपेयर देयर डिप्स, उनकी गहराइयों की तुलना करें। Which one of them is deepest? इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है? Which one is slowest? Why? कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है, ऐसा क्यों है? What was caused the ball to make a deeper dent? गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया? Discuss and analyze. विचार विमर्श कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए। Number 7. Set up the apparatus as shown in figure 10.5. Place a wooden block of known mass in front of the trolley at a convenient fixed distance. Place a no mass of on the pen so that the trolley starts moving. The trolley moves forward and hits the wooden block. Fix a stop on the table in such a manner that the trolley stops after hitting the block. The block gets displaced. Note down the displacement of the block. This means work is done on the block by the trolley as the block has gained energy. From where does this energy come? Repeat this activity by increasing the mass on the pen. In which case is the displacement more? In which case is work done more? In this activity, the moving trolley does work and hence it possesses energy. चित्र 10.5 के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी गुटके को ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है। मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने का पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। गुटके से गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन की मापिए। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से आई? पलड़े
पर द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रकार दोहराइए। किस अवस्था में विस्थापन अधिक है, किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा। इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है। A moving object can do work. An object moving faster can do more work than an identical moving relatively slow. A moving bullet, blowing wind, a rotating wheel, a speeding stone can do work. How does a bullet pierce the target? How does the wind move blades of a windmill? Object in a motion passes energy. We call this energy kinetic energy. A fallen coconut, a speeding car, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, a running athlete, etc. possesses kinetic energy. In short, kinetic energy is the energy produced by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increases with its speed. How much energy is possessed by a moving body by virtue of its motion? By definition, we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. Let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. Considering an object of mass m moving with a uniform velocity, u, let it now be displaced through a distance s when a constant force F acts on it in the direction of its displacement from done on the object will cause change its velocity. Let its velocity change from u to v. Let be the acceleration produced. एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेज पाती है? बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियाँ कैसे घूम पाती हैं? गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। संक्षेप में, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु एक आसान वेग u से गतिशील है। अब मान लीजिए जब इस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। समीकरण 10.1 में से किया गया WFS के बराबर है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग u से v हो जाता है। मान लीजिए उत्पन्न त्वरण का मान a है।
अनुभाग 7.5 में हमने गति के 3 समीकरण के बारे में अध्ययन किया है। एक समान त्वरण ए से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन के बीच निम्न संबंध है।